Yes, because it contains the larger tail on the right, so it is called the right skewness or positive skewness. So noted that in the positive skewness, mean is always greater than the median and median is greater than the mode. So mean, median, mode, basically these are the values always occur on the horizontal axis, on the x-axis. So that is the position of the mean, that is the position of the median, and that is the position of the mode. But noted that these are just our guess, our approximation. So mode is the value that occur at the highest peak of the data. But noted that if you watch it graphically, you see that the gap between mean and median is smaller than the gap between mean and mode. So there is an empirical relationship between these three values, that if there is a gap of 1 unit between mean and median, then that then the gap between mean and mode is the 3 times of the gap between mean and median. I repeat the line. The gap between mean and mode is 3 times the gap between mean and median. So that's why mean minus mode is always equal to 3 times the difference of mean and median. So when you solve it further numerically or theoretically, you get the new expression of mod equal to 3 times the median minus 2 times mean. So what is the application of that empirical relationship? Sometimes it happens that mean and median are given for a data which is not given to us. Means the data is unknown, but their mean and median are given, and you are asked to find the mode for that data. So by using this empirical relation, you can easily get the mode. So since the empirical relationship contains the three data values, तो ये चूंकि थ्री सेंटर ऑफ टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कोई सी भी एक वैल्यू मिसिंग है तो आप इंपेरिकल रिलेशन को यूज करके वो मिसिंग वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं. Okay, one of the important fact is that this empirical relationship does not hold in the case of J-shaped or an extremely skewed distribution. ठीक है जी, ये empirical relationship जो J shaped में या extremely skewed distribution में hold नहीं करेगा, क्योंकि basically ये approximation है. ठीक है जी, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल चूज़ कर लें जहाँ पे आपने न्यूमेरिकली मीन मीडियन मॉड की वैल्यूज़ कंप्यूट की होंगी, उसके बाद 3 मीडियन माइनस 2 मीन की वैल्यू कंप्यूट करें, आपके पास मॉड की वैल्यू आ जाएगी, और इसे कंपेयर करें अपने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मॉड के साथ. तो ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू जो है उसके एग्जैक्टली इक्वल है, उसके अप्रोक्सीमेट होगी, बट इन द केस ऑफ जे शेप्ड और एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस empirical relationship does not hold because it contains always some errors. और जे शेप्ड में और एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये जो एरर है ये एनलार्ज होता है, तो वहाँ पे ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप होल्ड नहीं करेगा जी. द बॉक्स प्लॉट, सो वी विल सी इट एट द एंड. मैंने सॉल्व किया हुआ बॉक्स प्लॉट को, लेकिन हम इसको एंड पे देखते हैं, तो भी अगर टाइम मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. Now let's study the relationship between mean, median, and mode with the help of these three different frequency distributions. One of the common attribute is that these three different frequency distribution like f1, f2, f3, they have the same class boundaries. जी, इनकी class boundary same है लेकिन frequencies different है. इसका मतलब ये कि हमारे पास 3 different frequency distributions मौजूद हैं. लास्ट कॉलम जो है वो क्लास मार्क का है. यू नो दैट क्लास मार्क 0 + 10 over 2 5, 10 + 20 over 2 15, 20 + 30 over 2 25, 30 + 40 over 2 35. Okay, now students, it's time for you that please
compute the mean, median and mode from this theoretical data. ये डाटा आपके पास गिवन है, आप पहले क्लास मार्क और F1 की मदद से मीन, मीडियन और मोड कंप्यूट करें, फिर क्लास मार्क और F2 की मदद से यही सेम सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जो है मीन, मीडियन, मोड जो है वो कंप्यूट करें. I will give you 10 minutes to solve mean, median and mode for frequency data F1 and then for the frequency data F2. तो अगर इन 10 मिनट्स में आपको टाइम मिल जाता है, you can also go and work for mean, median, mode for F3. ठीक है जी. So hurry up, please calculate mean, median, mode for these datas. So you have 10 minutes, so hurry up. Okay, students, I think PDF file is visible. So what I am doing, going to do, I am going to draw the frequency curve of first data. First data means F1. So noted that I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have 7 frequencies. So against it, I have the respective class marks. So my first point will be 5, 5. My second point will be 15, 10. My third point will be 25, 15. Fourth one will be 35, 20, and so on. So basically, I need to plot these points on the plane, and then I will join these points with the help of some curve. And as I draw the curve, I can easily guess that what kind of a curve is that. Is it symmetrical or right skewed or left skewed distribution? But without plotting, you can also judge. So look at the first frequency column. सबसे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको 5 नज़र आ रही है. आपको ये भी नज़र आ रहा है तमाम क्लासेस जो हैं वो यूनिफॉर्म लेंथ्स की हैं. यूनिफॉर्म क्लासेस हमारे पास हैं. दीज आर दी क्लास बाउंड्रीज. तो सबसे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 हुई, उसके बाद नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 हुई, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी से हाई है. फ्रीक्वेंसी को आप हाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड क्लास की हाइट 15 है, यानी फ्रीक्वेंसीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है और हायर होगी, लेकिन उसके बाद 20 के बाद डिक्रीजिंग शुरू होगी. 15, 10, 5. बट लुक एट 20 से पीछे और 20 से आगे देखें, फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेम हाइट की हैं. इसके बाद सेकेंड लास्ट फ्रीक्वेंसी और सेकेंड फ्रीक्वेंसी यानी कि सेम हाइट की हैं. फिर लास्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो भी सेम हाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो if you see such kind of a frequency distribution, you can easily judge that कि आपके पास लार्जर फ्रीक्वेंसी से पीछे और आगे यानी राइट पर और लेफ्ट पर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेम आ रही हैं. So that indicates about the perfect symmetrical distribution. और परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड कोइंसाइड करते हैं. लेकिन आपने रोल नंबर 90 आपने जो मीन कंप्यूट किया वो आया 11.42, फिर 20 और मोड आप तीन मोड. अमेजिंग. ठीक है जी. ये मैं अभी आपसे पूछता हूँ जी, किस तरह से आपने ये जो है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कंप्यूट किए. बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, द क्वेश्चन स्टिल आई थिंक लाइड इन देयर कोर्ट्स. Why they did not respond? So either they do not bother to attempt these problems, यानी शायद उन्होंने तकलीफ ही नहीं की सॉल्व करने की, या वो उनकी भी कैलकुलेशंस जो हैं वो रॉन्ग थी, यही वजह कि उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. तो ये आप लोग मुझे लेक्चर के एंड पे बताइएगा. अच्छा, तो हम इनकी ग्राफिकल फॉर्म को देख रहे हैं कि ग्राफिकल फॉर्म किस तरह से ड्रा करें.
ये पहले तो मैंने क्लास बाउंड्रीज की क्लासेस की एंड पॉइंट्स मैंने मेंशन किए 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। जी 5 से 10 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? सॉरी 0 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी है 5, 0 से 10 तक की। जी 0 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी 5 है, लेकिन हम क्लास मार्क और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को जो है वो प्लॉट कर रहे हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है फर्स्ट पॉइंट है 5,5। तो देखें ये मैंने 5,5 प्लॉट किया, इसके बाद 15,10, फिर 25,15, 25,15 प्लॉट कर लिया, फिर 35,20 कंप्यूट किया, प्लॉट किया 45,15, फिर 55,10 और at the end 65,5. So when I join these points with the help of some curve, so it looks like a normal curve. Exactly normal curve तो नहीं बन रही क्योंकि मैंने plotting इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है जी। So that is a perfect symmetrical distribution, or that is also named as normal distribution or normal curve. I am going to the chat box. Okay. Okay, no other message in the chat box. Okay, that's the repetition, but in a slightly different way. Slightly different way नहीं कहना चाहिए इसको, additional factor ऐड किया है मैंने इसमें। वो additional factor क्या है कि मैंने पहले इसकी histogram ड्रा की है। Just wait. Allow me to normalize it up to some range. जी ज़रा देखिएगा। First I construct the histogram, and as I construct the histogram, I choose the midpoints and then join these midpoints with the help of frequency polygon. Okay, look at the histogram. First box, second box contains the larger height as compared to the previous one. Third has more larger height than the fourth one. Then you get a rectangle lesser height, but this rectangle and this one has the same height. Then this rectangle, so this one and the second one, they have the same height, and the last one, look at the last one and the first one, they have the same height. So if you have a histogram looks like that, so such kind of a distribution is named as symmetrical distribution or normal distribution. तो हिस्टोग्राम से भी आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं अगर डाटा आपके पास मौजूद ना भी हो, तो कि जी क्या ये जो हिस्टोग्राम है ये किस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। सो सच काइंड ऑफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कम टू द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ F2। पहले F2 के ऊपर गौर करें ज़रा आप। इन F2 द फर्स्ट यू हैव द फ्रीक्वेंसी 5, देन 15 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर एकदम जंप करके 40 पे चली गई, यानी 15 और 40 के दरमियान गैप कितना है 25 का। इधर 10 का गैप नज़र आ रहा था, इधर गैप काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है 25 का, ठीक है। यानी एकदम जंप करके फ्रीक्वेंसी 40 पे चली गई, फिर डिक्रीज कर गई 15 यूनिट्स 25 पे आई, फिर कुछ कम डिक्रीज किया 20 पे, फिर अ लिटिल बिट लो गैप 10 और 5, यानी कि पहले इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग में एकदम जो है वो हायर जंप लगाती है,
और उसके बाद फिर स्लोली डिक्रीज कर रही है. दैट मीन्स यू हैव द मोर डाटा वैल्यूज after the highest frequency you have the more data values, and before the highest frequency you have only two data values. यानी जब when we draw the frequency polygon from this curve, we get the larger values depiction after the maximum frequency. After the maximum frequency means after 25. आफ्टर द क्लास मार्क 25, 35, 45, 55, 65, चूँकि ये वैल्यूज़ जो हैं ये 25 के राइट पे लाई करेंगी, तो इन पे आपको वैल्यू ज़्यादा नज़र आएंगी. इन पे वैल्यू ज़्यादा नज़र आने का मतलब ये कि राइट साइड पे आपको टेल बड़ी नज़र आएगी एज कम्पेयर टू दी लेफ्ट एंड. सो वाइल ऑब्जर्विंग द डाटा ऑफ frequency 2 or from the second data, you can guess that from this data we can get the right-tailed distribution or the positive skewness. और positive skewness के अंदर मीन हमेशा मीडियन से ग्रेटर होता है और मीडियन हमेशा मोड से ग्रेटर होता है. तो हम इसके जो है ग्राफ की तरफ चलते हैं. सो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड डाटा. तो पहले फ्रीक्वेंसी 5 हुई, फिर 15 हुई, फिर एकदम 40 हो गई. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 है. उसके बाद जो है वो स्लोली डिक्रीज कर रही है. 25 पे आई, फिर 20 पे आई, फिर 10 पे आई और फिर 5 पे आई. सो यू कैन सी दैट यू हैव द लार्जर टेल ऑन द राइट एज कंपेयर टू द लेफ्ट एंड. So this is called the right skew distribution, or it represents the positive skewness curve. Okay, for the second data I have calculated the mean. Mean is 32.5, median is 30 and mod is 26.25. तो मेरे लिए ये स्टिल क्वेश्चन है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि ग्रुप्ड डाटा में मीन के साथ ढूंढते हैं, मीडियन के साथ ढूंढते हैं, मोड के साथ ढूंढते हैं. मैंने आपको न्यूमेरिकली भी बताया और ग्राफिकली भी बताया. तो आप लोगों ने ये किस तरह से मीन, मीडियन और मोड जो है वो गलत कंप्यूट किए हैं, इसका मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे अभी तक क्वेश्चंस की. सो दैट विल बी डेंजरस फॉर यू पीपल व्हेन यू अपीयर इन योर एग्जाम, in any exam like midterm, final, quizzes. So from the second data we can see that our mean is clearly greater than the median and median is clearly greater than the mode. So these are some thumb rules that the larger tail on the right. So this is a kind of a asymmetrical distribution. तो जो फर्स्ट वन हमारे पास थी ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी. नोटेड दैट इन द फर्स्ट data or in the first frequency distribution that is related to the frequency f1, we have a symmetrical distribution. इसमें mean, median, mode equal हैं और यहाँ पे mean, median, mode जो हैं ये 35 हैं. ठीक है जी, आप कंप्यूट करके देख लें. तो सेकंड डाटा में mean, median, mode हमारे पास ये आ रहे हैं. एंड फॉर द थर्ड वन में अगर आप गौर करें डाटा के ऊपर, तो पहले फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 10 है, 20 है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. फिर स्टिल 25 के बाद एक जंप लिया 40 पे, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और उसके बाद एकदम डिक्रीज किया, सडनली decreases from 40 to 15 and 15 to 5. But noted that after the highest frequency we have only two data values. डाटा वैल्यूज तो नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस हैं और 40 से पीछे हमारे पास 4 क्लासेस आ रही हैं. सो दैट मीन्स कि इट्स लेफ्ट हैंड इज़ लार्जर देन दी राइट हैंड. तो जब मैं इसे क्लास मार्क के साथ मिला के पॉइंट्स की शक्ल में ड्रा करूँगा, so I will get this kind of a shape. So you can see that left hand is larger than the right hand tail. So that is called the left skewed distribution or negative skewness. इस केस में मैंने मीन कंप्यूट किया हुआ, मैंने मीन आपके सामने लिख भी दिया है अगर आपको नज़र आ रहा है. जी, मीन मैंने लिखा है जी, सम ऑफ द डाटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज.
ये मैंने किस तरह से लिख दिया। अब आप लोगों का जो कंसेप्ट था वो तो टोटली रॉन्ग था, मैंने या शायद मैं गलत लिख रहा हूँ इसमें, देखें। क्योंकि ज़रा आप गौर करें, द डाटा वी आर यूजिंग, ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड डाटा की, थर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जी, थर्ड फ्रीक्वेंसी में जिसमें F3 इन्वॉल्व होगा। सिंस इट इज़ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मीन किस तरह से कंप्यूट करेंगे? मीन फार्मूला इज सिग्मा F3x डिवाइडेड बाय सिग्मा F3। तो सिग्मा F3 कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 + 25 40, 50 60, 60 में 40 ऐड करें 80, 80 में 20 ऐड करें, अच्छा नहीं, 60 में 40 ऐड करें 100, 100 में 20 ऐड करें तो 120। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज का जो सम आ रहा है आपके पास, वो 120 आ रहा है। दैट्स वाई आई डिवाइड द टोटल सम, दैट मीन्स सिग्मा fx को मैं सिग्मा f3 पर डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास आ गया 37.5। और मीडियन का फार्मूला ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, L + h/f n/2 - c। वही फार्मूला यूज़ करके मैंने मीडियन कंप्यूट किया है। मॉड का फार्मूला होता है L + fm - f1 मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय fm - f1 + fm - f2। तो क्लियरली मीन जो है वो मीडियन से लेसर है और मीडियन जो है मॉड से लेसर है। A larger tail on the left, so we get a asymmetrical distribution. तो ये हिस्टोग्राम बनी हुई है, ये है राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और F3 का यानी कि थर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ये हिस्टोग्राम है, जहाँ से आप जो है वो लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गेन करते हैं। Another representation, स्टूडेंट्स आपको वर्टिकल एक्सिस पे F2 नज़र आ रहा है, दैट मीन्स basically this graphical representation is related to the second data। सेकेंड डाटा का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये थोड़ा सा मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ कि मीन मेरे पास आ रहा है 32.5, तो 32.5 कहाँ लाई करेगा, ये 30 और 35 के सेंटर में, ये मीन की वैल्यू है। फिर मीडियन मेरे पास है 30, तो ये मीडियन की वैल्यू मैंने गलती से मॉड लिख दिया है, दैट इज़ नॉट मॉड, दैट इज़ मीडियन। और मॉड जो है मेरे पास वो आ रहा है 26.25, तो ये मैंने मॉड लिखा है 26.25। ठीक है जी, आप इसे चेक कर लें ज़रा। यू कैन आल्सो चेक द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। आप यहाँ पे एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी चेक कर सकते हैं, वेदर इट होल्ड्स और नॉट। और राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन था 37.5, मीडियन था 40 और मॉड था 43.75। सो अकॉर्डिंग टू द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज ऑलवेज सॉरी, अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, में थोड़ा सा मैंने मर्ज कर दिया, ये राइट स्क्यूड लिखा हुआ हमने ऊपर वाली डायग्राम के लिए। लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ऑलवेज लेसर देन द मीडियन एंड मीडियन इज ऑलवेज लेसर देन द मॉड। तो ये मैंने ज़रा सा इनको ग्राफिकली भी इलस्ट्रेट किया हुआ है, मीन, मीडियन और मॉड को। So larger tail on the left, and this is a kind of a asymmetrical distribution. Okay, there are some key points. In positively skewed distribution, we get the height or peak nearer to the origin,
So that is the one of the important point. In negatively skewed distribution, we get the hype or peak away to the origin. And in perfect symmetrical distribution, mean equal to median equal to mode. तो ये जो डाटा मैंने शेयर किया था उसमें हमारा फर्स्ट केस के अंदर हमारा मीन मीडियन मोड 35 आ रहा है. फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है. मीन हमारा 32.5 था, मीडियन 30 था, मोड 26.25 था. You people further need to verify my calculations or my results. For negatively skewed distribution, you see the reverse order. और ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखी हुई है कि मीन 37.5 था, मीडियन 40 था और मॉड 41.75 था. Moderate skewed distribution means either the negative skewed distribution or positive skewed distribution. And the last one is the empirical relationship between mean, median, and mode that we have already discussed. So that is related to my today lecture. But before ending, I will go back and give you some information about the box plot. Okay, what is the box plot? Box plot, which are graphically very simple, are based on the median, a measure of location, and the interquartile range. Interquartile range is, dear students, we will cover it in next chapter, a measure of data's variability, and they are very informative and effective for comparing two or more data sets or distribution. How to construct a box plot? A box plot is constructed by drawing a rectangle. आप एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं या बॉक्स ड्रा करते हैं विद द एंड्स, और उसके एंड्स जो होंगे उसको आप हिंजेस कहेंगे. ड्रॉन एट द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल. जी, ये इसके एंड्स हैं. ठीक है, यानी आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है. दिस इज ए रेक्टेंगल और इसके जो एंड्स हैं ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ. मैं इसको शेड कर देता हूँ. ये एंड है और एक इसका राइट एंड है. So these are called the hinges drawn at the lower and upper quartile Q1 and Q3. The median of the data is shown in the box usually by a plus sign. Median को show करते हैं प्लस साइन से, जो बेसिकली इसके सेंटर में लाई करता है. ठीक है जी. Q2 लिखना चाहते हैं लिख दें, वैसे प्लस के साइन से हम Q2 को शो करते हैं. द स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड द विस्कर्स और are drawn from each hinge to the most extreme observation. ये जो straight lines आपको नजर आ रही हैं, these are called the whiskers. ये whiskers कहलाती हैं. And this is the minimum end of the data and this is the maximum end of the data. Here on the horizontal axis you have the class limits या class boundaries कह लें. ये जो intervals आपके पास होते हैं ना class limits के या class boundaries के. And the entire graph is called a box and whisker plot. If one whisker is longer, अगर कोई सा एक whisker longer हो, whisker means कोई सी एक side longer हो, यानी शायद left side longer हो या right side longer हो, the distribution of the data is skewed in the direction of the longer whisker. तो अगर लेफ्ट साइड जो है वो लॉन्गर होगी तो उसको हम लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे, और अगर राइट साइड लॉन्गर हो तो उसको हम राइट स्क्यूड कहेंगे. बुक के अंदर भी इन्होंने एग्जाम्पल 3.13 का बॉक्स प्लॉट ड्रा किया हुआ है. यू नीड टू वेरीफाई. मैंने बॉक्स प्लॉट ड्रा किया हुआ है. ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो क्वेश्चन दिखा दूं. ये जो क्वेश्चन हमारे पास था, जिसको हमने यानी इस डाटा को यूज़ किया और इसको क्लासेस में चेंज कन्वर्ट किया. ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. फिर यहाँ से हमने Q1, Q2, Q3 मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन कंप्यूट कर लिए थे. तो मैंने वहीं से ऊपर से ही देखकर मैंने Q1, Q2 और Q3 कंप्यूट कर वहीं से देखकर मैंने लिख लिए. मीन, मीडियन, मॉड भी लिख लिए.
तो हमारी जो डाटा वैल्यूज हैं, जो क्लास है वो शुरू हो रही है 8 से 9.5, 1.5 का गैप था, फिर 9.5 से 11, 11 से 12.5, 12.5 से 14, 14 से 15.5 और एंड होता है कि 18.5 पर। अब बॉक्स जो बनाना है, आपने जो बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना है, द बॉक्स कंस्ट्रक्टेड, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बॉक्स, फॉर दैट यू नीड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3। तो Q1 इज 10.4793, तो 10.4793 अकॉर्डिंग टू द स्केल, मैंने अपने यानी कि स्केल की मदद से मैंने ये क्लासेस बनाई हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्केल आई डिटरमिन द वैल्यू ऑफ Q1 एंड द वैल्यू ऑफ Q3 दैट इज़ 13.82। और उसके बाद मैंने स्केल को यहाँ रखकर मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रा कर ली, कुछ यहाँ भी वर्टिकल लाइंस ड्रा कर ली, ठीक है जी। और मैंने एक बॉक्स बना लिया, और वेर इज़ Q2 लाइज, Q2 लाई करता है जी, Q2 इज़ 11.995, वो इस हॉरिजॉन्टल डाटा में यहाँ पे लाई करेगा। तो यहीं इसी से मैंने एक वर्टिकल जो है एक्सटेंड किया एंड डिवाइड्स माय बॉक्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ड्रा कर लिया। एंड व्हेन आई वांट टू क्रिएट द हिंजेस, तो उसके लिए मुझे एक लाइन ड्रा करनी है इसके Q1 वाली लाइन से लेफ्ट की तरफ, और ये कहाँ तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मींस लोअर क्लास बाउंड्री तक जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो आई थिंक वो लोअर क्लास बाउंड्री फर्स्ट क्लास की थी 7.995, तो वो यहाँ पे आके रुकेगी। और यहाँ से सेकेंड विस्कर ट्राई करना है मुझे, इट एंड्स एट 18.475, तो इसको यहाँ पे एंड कर दिया। So basically that is the simplest graph of a box and a whisker plot. So and that is related, that is all about related to the today lecture.